Hello students, welcome in our YouTube channel Prime Science. Students, in this video we are going to explain some important questions of worksheet 31 which is related to chapter 6 life processes. Students, before go through this video, please subscribe our channel Prime Science. Students, let's start with objective type questions. First question is organelle used as the site of photosynthesis is. There are four options. We have to select one correct option. A. Mitochondria, B. cytoplasm, C. chloroplast, D. Golgi bodies. हमें बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। फोटोसिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर होती है, तो इसका आंसर सी सही है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ट्रिप्सिन सीक्रेटेड बाय ग्लैंड पैनक्रियाज एंड ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज anaerobic respiration occurs in. Anaerobic respiration means respiration without oxygen or in a lack of oxygen in yeast, bacteria, human muscles and all of above. Students, right answer is all of above. ये सभी में होता है, yeast, बैक्टीरिया और human muscles. Next question is functional unit of excretory system is nephron. Question 6 is the blood cell which are helpful in stopping the blood at the site of injury, means help in blood clotting. Right answer is C, platelets. Question 7th is complete the sentence. Lymph is similar to plasma of blood but is colorless and contain less protein. In first blank, plasma, in second, colorless, and in last blank we fill it with protein. Lymph is similar with plasma of blood but is colorless and contain less protein. Next question is what will happen to plant if its xylem is removed? If xylem of plant removed, then conduction of water will be stopped and conduction of minerals also stop and plant will dry. Next question is the blood vessel which brings oxygenated blood from the lungs into the heart. उन ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेकर आती है? पल्मोनरी आर्टरी, वेना केवा, पल्मोनरी वेन और एओर्टा. राइट आंसर इज पल्मोनरी वेन. क्वेश्चन 10. Assertion A is stomata are tiny pores present on the surface of leaf. Correct. Region R gaseous exchange takes place in plants through stomata. This is also correct. Answer first is correct. Both A and R are true and R is the correct explanation of assertion. Now short answer type questions. First is why does a piece of bread start tasting sweeter after chewing for some time? Because starch which is present in bread converts into sugar after mixing with saliva, then its taste sweeter after chewing for some time. जब हम उसे थोड़ी देर के लिए चबाते हैं तो जो ब्रेड में शर्करा है, स्टार्च है, वह शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो हमें मीठा लगने लगता है. Second is which is the largest gland of human digestive system? Largest gland means liver. What is its function? Liver helps in digestion of fat.
List of 3 events that occurs during the process of photosynthesis. Answer is here. First, absorption of sun energy. सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्प्शन करती है सूर्य से एनर्जी का. सेकंड स्टेप है फोटो एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी. जो सूर्य की जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. एंड फाइनल स्टेप इज कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस इनटू ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स. स्टेट द फंक्शन ऑफ विलाइज. विलाइज which are present at the wall of small intestine. Villi helps in absorption of digested food. जो भोजन पच जाता है उस पचे हुए भोजन को विलाइज के द्वारा ब्लड में अवशोषित किया जाता है. पांचवा क्वेश्चन है स्टोमाटा ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम. एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन दे टेक अप CO2 टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग डे टाइम the stomata of desert plant remain closed because of saving of water. Explain how when they take up CO2. They take CO2 when stomata opens in low temperature during night. जब रात में टेम्परेचर कम हो जाता है इनके स्टोमेटाज ओपन हो जाते हैं और उसी समय जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो CO2 का इनटेक करते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक. हाउ मेनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक? 3 ग्लैंड्स. फर्स्ट सीक्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द फंक्शन ऑफ HCl इज प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड. जो बाहर से भोजन आ रहा है उसमें उसको एसिडिक बनाती है जिससे कि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके. आंसर ऑफ बी इज पेप्सिन. पेप्सिन पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. आंसर ऑफ ई इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. आंसर ऑफ सी इज म्यूकस. म्यूकस एंड फंक्शन ऑफ म्यूकस इज प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl. HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो स्टोमक की इनर वॉल है उसको उसके जलन से उसके इफेक्ट से बचाता है. तो ABCDEF के सारे आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं. नेक्स्ट इज 7th. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स? द ब्लड कम्स इन हार्ट 2 times ड्यूरिंग सिंगल साइकिल. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स. जब ब्लड ह्यूमन के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करता है तो एक साइकिल में वह हार्ट के अंदर 2 बार एंटर करता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? आर्टरीज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ body, but veins collect impure blood in which CO2 is mixed from various organs to heart. Arteries present in deeper in our muscles, but veins are on surface. Arteries having thick and elastic walls, but in veins the wall of veins not elastic and thin. Veins contain walls but arteries do not have any wall. Number 9. How does transpiration help in upward transport of substances? Transpiration creates a transpiration pull, a suction pull upward side. जो ट्रांसपिरेशन है जब ऊपर से पौधों में जल निकल जाता है तो ऊपर की तरफ एक पुल प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण जो जाइलम में वाटर प्रेजेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ पुश होता रहता है. इसी के कारण जो सब्सटेंसेज हैं जो वाटर है और उसके साथ जो भी मिनरल्स है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन किडनीज.
Formation of urine. First process is ultrafiltration. When blood enters from this side and exit from this side, at that time a pressure is create inside glomerulus and some tiny particles और minute particles filter here. जो बहुत छोटे छोटे इसमें डिजॉल्व मटेरियल्स हैं वो नीचे की तरफ फिल्टर हो जाते हैं. यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं. इन डक्ट से पास होते हुए इसमें से जो कुछ हमारे असेंशियल एलिमेंट्स भी यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, जैसे एमिनो एसिड, सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं. तो इनका यहाँ पर दोबारा इस डक्ट्स में से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है. जो हमारी कैपिलरीज यहाँ पर ब्लड की इसके चारों तरफ होती हैं वो इनको रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं. और यहाँ पर सीक्रीशन भी होता है ब्लड से जैसे पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, वो ब्लड की कैपिलरीज से कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है, रिलीज हो जाती है. और लास्ट में जो वाटर है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्ब हो जाता ताकि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो सके. और जो कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में यूरेटर्स, मूत्रवाहिनी में जाके मिलती है, जहाँ पर केवल यूरिया, यूरिक एसिड और एक पिगमेंट जिसके कारण हमारे टॉयलेट का कलर येलो होता है वो रह जाते हैं. इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन बॉडी में होता है. हम पहले भी वीडियोज़ में इसको ऑलरेडी वेल एक्सप्लेन कर चुके हैं. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट इज ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल ऑन इट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम. ओके. And B, justify statement that blood circulation in face is different from blood circulation in humans. Because in face and in human double circulation of blood, but in face single circulation of blood. And heart, in face blood enters in heart only one time, and heart push out impure blood from the बॉडी. उस बॉडी से हार्ट इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल देता है और केवल एक बार ही सर्कुलेशन होता है, जबकि ह्यूमन में 2 बार सर्कुलेशन होता है. आइए एक बार हार्ट का डायग्राम भी यहाँ देखते हैं. ये हार्ट का डायग्राम है जिसमें पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम जो दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल को, लेफ्ट और राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स जो प्योर ब्लड को लाती हैं, जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाती है. ओके. यहाँ से आप देख के इस डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. फॉलोइंग पार्ट्स किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ लेबल्ड पार्ट. हमें यहाँ एक डायग्राम बनाना है और ये जो आपको 4 ऑर्गन दे रखे हैं उनके फंक्शन भी लिखने हैं. आइए देखते हैं एक बार. दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच कंटेन 2 किडनीज लेफ्ट एंड राइट, ureters, 2 ureters, urinary bladder, this, and this is urinary opening or urethra. Kidneys located both side of backbone and it filters blood. Ureter contain urine from kidneys and passes through conduct to urinary bladder. किडनी से जो यूरिन बनता है उसको यहाँ यूरिन ब्लैडर तक पहुँचाते हैं. यूरिनरी ब्लैडर में का काम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर होता है. और यूरेथ्रा का काम होता है जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है उसको टाइम टू टाइम बॉडी के बाहर रिलीज करता है. स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इज देयर इज डिफरेंस इन रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन aquatic organisms and terrestrial organisms. Why? Explain. Aquatic organisms means live in water and terrestrial which live on land. इनमें जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो डिफ़र क्यों है? मीन्स जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्टर होता है देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बिकॉज एक्वाटिक एनिमल्स
takes oxygen from water, and terrestrial organisms take oxygen from air. In air there is ample amount of oxygen, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है, बट इन वाटर less amount of oxygen present in water. That's why they need more and more oxygen and respirate faster than terrestrial organisms. जो पानी में रहते हैं जीव, वो उनको ज़्यादा सांस इसलिए लेते हैं ताकि क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। जो जल है, जल में ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, इसलिए वो ज़्यादा सांस जल्दी लेते हैं, जबकि जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसलिए कम सांस लेते हैं, वो एयर से सीधा ऑक्सीजन लेते हैं और एयर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से समझा है, और ज़्यादा डिटेल में आप पहली वीडियो से भी इस क्वेश्चंस के आंसर आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्राइम साइंस। थैंक यू।